Assalamu alaikum, Amna. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Thank you so much for inviting me for this session. Looking forward to this Gupshup session. Perfect. Before we proceed to the overall session, if you can just tell me about yourself, what you are doing right now, ताकि audience को पता चल जाए. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, if you can tell me what's going on in life, how's everything going? So, yes, Umair, as you know, but I would like to tell this is Amna Yunus. I'm working as a creative director at a 360 advertising agency. I love to call myself Purple Girl. Those who follow me on Instagram know me from the name The Purple Girl because I'm obsessed with color purple basically. So it's everywhere. It's a part of my life. It's a part of my being. Other than that, I'm a hardcore advertiser, and by heart, I'm a philanthropist. I My principles are based on empathy, and that is something I strongly focus on in my professional and in my personal life. So yeah, this is about. Totally agree. Totally agree. So, before we start the conversation, the first thing that I have in my mind is to, um, in creative, usually it's more likely develop throughout the year. ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज से 2-3-4 साल पहले की, तब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स इतने नहीं थे। तब क्रिएटिव शायद ऑन साइट ही होता था that related to that. But now, as we are seeing that a lot of what I say, a lot of social media platforms are coming up, a lot of AI things are coming up. People are now moving toward the digital part, but now the creative thing is going to digital side as well. So, yeah, if you can tell me like how's the overall experience, how you started as it like why did you choose creative? Like you can be something else like communication, visual design या अगर मैं creatives की बात करूँ तो it's something like usually people are following their dreams. There is no such thing like yeah ठीक है यार हमारे पास कोई और स्कोप नहीं थी तो हम ये कर लेते हैं. So how was your overall experience? What are the things that you have seen in your overall experience? So you can share that. So basically, Umair, it's about like it's been 6 years in advertising by degree. By degree, I'm a visual communication designer. But then, like when I started off in the early years after my degree, I realized that no, I'm not the computer person. So, to be honest, I cannot sit in front of this software designing garden. Like huge, massive respect for all the designers. But I felt that I didn't have that temperament to just sit on the system and keep on doing the same designs again and again. I'm more of a vocal person. I want to communicate. I want to connect. I want to network more. So I felt creative was the right field for me. एंड ऑब्वियसली एक आपको पता है कि हम जैसे जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनमें कीड़ा होता है वी जस्ट कैन नॉट स्टिक टू वन काइंड ऑफ जॉब ऑल्दो लाइक I got admission in engineering university as well. I passed the test. I was about to join, the session for computer engineering, but I just didn't because luckily उसी time पे मेरा arts college में I got an admission. So I was like, oh my god, this was the best move of my life, I must say. So as I've mentioned, like in the past 6 years, सोशल मीडिया का बूम जो है वो मैंने आई हैव एक्सपीरियंस दैट ऑब्वियसली हम उस टाइम के नहीं हैं जब प्रॉपर हार्डकोर कन्वेंशनल होता था। अब के टाइम में आई मस्ट से लाइक इन दीज़ 6 इयर्स आई हैव ट्रेन्ड इंटर्नीज़, आई हैव ट्रेन्ड माय टीम एज़ वेल। अब तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग विद मी, फॉर मी एंड ऑल दैट। बट उसके अंदर व्हाट आई रियलाइज़ इज़ दैट सोशल मीडिया के आने की वजह से ना there is like all the time you have to be active. You have to keep your research on. You have to be, on your foot all the time because it just doesn't give you break. And people think that uh, advertising is very flashy. It's very interesting all the time. You're doing creative stuff. There are days where you feel terribly down. There are days you feel, on the moon because there are days जब आपका काम जो है ऐसे it gets approved because and then it's all about psychology. It's all about many people involved. Because हमारे जब जब हम यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना हमें दिखाए जाते हैं ब्रांड्स व्हेन वी आर स्टार्टिंग अच्छा नाइकी, एडिडास, एप्पल, वो ब्रांड्स जिन्होंने एक जर्नी कवर कर ली होती है। सो हम बड़ा ना उनको कर रहे होते हैं कि अच्छा फिर इनके सेटअप्स भी ऐसे होंगे एंड देन व्हेन वी come in the real advertising world, we realize कि it's not always the big giants we are working for. We need to work for SMEs, we need to work for startups. And then इतनी layers of minds जो है उसमें involved होते हैं कि in the end coming up with the final creative, it's not always about,
the best creative. It's more about your client की requirement fulfill करना. So initially I also felt कि अक्सर ऐसा टाइम होता है कि आप एज अ क्रिएटिव फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा हो नहीं रहा. आई वांटेड टू बी दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव, बट देन as a creative in the advertising world, no matter what, you are a digital marketer, you are a copywriter, you are a designer, whatever you are, आपको एक पॉइंट पर अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अवार्ड विनिंग वर्क. इट्स समटाइम्स, बल्कि आई मस्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम, अबाउट making your client happy, no matter it's just from one simple directory to it. So this is something I feel and about in advertising. Perfect. You have you have like been into the advertisement agencies and advertisement like creators for a long period of time, and we have seen that it's developed way fast pace after Corona in Pakistan especially. Okay. Before that, we do have social media, but then there's a boom of startups coming up. A lot of products, a lot of the startups are coming up in the Pakistan society, and now people are now moving towards the data center. But then straight out of it, we also can't deny the fact that conventional ही रहती है. ठीक है. The feeling of seeing some creative on a billboard, uh, the feeling of seeing your creatives on a commercial on a television, because till the date we are kind of in a phase of becoming a digital Pakistan, but we still have those पार्ट्स इन पाकिस्तान जहाँ पे अभी भी मोबाइल का रुझान इतना नहीं है, ठीक है। सही है, नंबर्स हैं, लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत डिजिटल हो रहा है। बट कन्वेंशनल यूजुअली हैज़ अ डिफरेंट फ़ील, क्योंकि आप उसमें अब रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि यार अगर आपने वो क्रिएटिव बनाया, आप ऐड लगाओगे और फिर पता चलेगा कि यार वो क्रिएटिव चला है, नहीं चला। You do market research as well, फिर वो डिजिटल हो या कुछ भी हो, एंड इट्स लाइक 2 डिफरेंट मीडियम्स। अब कुछ लोग कमर्शियल कन्वेंशनल को सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग डिजिटल की तरफ जाते हैं। डिजिटल हैज़ अ स्कोप, क्योंकि व्हाट आई सी इज़ आफ्टर फ्यू इयर्स पीपल आर स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज़ वो उनकी डे टू डे यूसेज हो गई थी। अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि लोग ड्रामे टीवी की जगह यूट्यूब पे देखेंगे, तो पहले शायद ही कोई सोच नहीं सकता था। नाउ पीपल आर exploring that thing, and people are now उनको अपनी लाइफ के अंदर वो ईज़ मिल जाता है, तो वो उस तरफ आ जाता है। That comes to one of the topic that I wanted to discuss is the roadmap, ठीक है? I'm pretty much sure when you have that energy, when you have that passion of doing something, you find your way. But it's not like कि it's meant to be. कभी-कभार आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैं बात करता हूँ आज से 5 साल पहले की या 4 साल पहले की, तब चीज़ें इतनी स्मूथ आउट थीं। हमारे पास इतनी एजेंसीज़ नहीं थी। अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एक बेसिक पॉइंट तो सिखा देते हैं, ठीक है? बट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, तो रियल वर्ल्ड में वो काम नहीं होता जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्योंकि जो आप असाइनमेंट के लिए बना रहे हो, वो रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? अब वो क्रिएटिव्स हो, वो थॉट प्रोसेस हो, वो आइडिएशन हो, वो डिजिटल डिज़ाइन करना है, कुछ भी हो, ठीक है? सो हाउ यू स्टार्टेड? व्हाट आर द फ्लॉज़ यू हैव सीन कि यार ये कुछ मसले पहले भी थे, अब भी थे, अब यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट अब ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको इन-इन चीज़ों पे तो फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? व्हाट आई एम सीइंग, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1 आर 1 कि ठीक है, जो पैशनेट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिफरेंट एजेंसीज़ में काम करते हैं, कोशिश करते हैं इंटर्नशिप करें, कोलैबोरेशन करें, ताकि उनको ये पता चले कि रियल वर्ल्ड में होता कैसे है, ठीक है? क्योंकि अब एज़ एन असाइनमेंट अगर कोई कहा जाए कि ठीक है, यू नीड टू मेक अ ब्रांड, यू नीड टू मेक अ क्रिएटिव, ठीक है? तो आपका पीछे बजट इन्वॉल्व नहीं होता। जब बजट इन्वॉल्व होता है, जब क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट what you like, it's about what is the requirement, it's about what is right, and it's also about making your client happy. At the end of the day, he is gonna pay for it, ठीक है? कभी-कभार हम देख रहे होते हैं कि वी डू हैव रियल लाइफ, अगर मैं बात करूँ, तो लोगों को यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि अगर Especially मैं on the advertising world. and, It's advertisement is when you say that it's 24/7 on your toes, it's because you don't know when to have something blast off. हो सकता है आपकी कैंपेन बनाए, वो जाए और
वो जिस तरीके से आपने सोचा हो वो काम नहीं कर सकता। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको बहुत फास्ट पेस सोचना पड़ता है। तो व्हाट आर द पॉइंटर्स एज़ एज़ फार अगर मैं आमना से पूछूँ तो आमना को क्या लगता है कि दीज़ आर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आर डूइंग इफ दे कैन डू दीज़ थिंग्स तो उनको आसानी होगी, उनको मदद मिलेगी, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, उमर इसमें ये है कि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊँ ना, तो जो एक आई थिंक मुझे एज मिला एंड अक्सर लोगों को ये होता भी है, सारे इख्तिलाफ अक्सर लोगों को होता है, कुछ कहते हैं चलिए यू काइंड रीच दैट पोजीशन वेरी अर्ली in your life, like you are so young for this position, या तुमने बहुत काम कर लिया. When I talk to people and tell them that I have worked like with some 60 plus brands over the past 5 or 6 years almost now. So it's just because I started off when I was in the second year of my university, basically because at that time I felt कि yeah, I know I'm in arts college, I have many things to experiment with, but at the same time I know that this is not what's happening outside. सो मैंने बड़ी क्विक क्विक इंटर्नशिप्स की एंड एट दैट टाइम आई थिंक अब के टाइम पे तो बल्कि लाइक बैक इन लाइक आप 10 साल पहले की अगर बात करूँ, ठीक है डिजिटल वाज़ देयर बट इतना ज़्यादा नहीं था. ऑब्वियसली देयर वाज़ नो टिकटॉक, अब तो बिज़नेसेस ही टिकटॉक के ऊपर बन जाते हैं. सो या इंस्टा भी नया-नया आया था, या चलिए 5-6 साल थे जब सबको अच्छा समझ आई थी उसमें ना, बट एट दैट टाइम इट वाज़ नेवर फॉर बिज़नेस. सो अब के टाइम पे तो ये है कि अगर हम देखें फ्रीलांसर्स आर नॉट फ्रीलांसर्स एनीमोर, दे आर मोर लाइक एक्सपर्ट्स. हमने अक्सर उनको फ्रीलांसर्स कह के हम थोड़ा-सा मुझे लगता है उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते. दे आर मोर लाइक एक्सपर्ट्स. नाउ वी नीड टू एनकरेज देम मोर. तो पहले टाइम पे हमें वो नहीं मिलता था. सो मुझे आई रियलाइज़ कि जब मैंने जल्दी अपने आप को कनेक्ट करना शुरू किया लोगों के साथ, मतलब कि during university time, I didn't hesitate to talk to a third or fourth person, although I was not very much of a social person with the batchmates and all that. But जहाँ professional networking की बात आती थी, I was very active. So even at that time, in my first or second year of university, being a design student, I was giving copywriting services to different companies in the UAE as well. Writing blogs for them, social media planners उस time पे बनाए जा रहे होते थे and all that. So उस टाइम पे आई गॉट देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिमोट वर्किंग एज़ वेल एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग डाउन द लाइन. So वहाँ से I started working and then in my fourth year when everyone was doing the thesis and obviously last year होता है people are more into the party stuff, okay we need to connect आखिरी साल है दोस्ती and all that. Those were there but at that time I started working. Like in my last year of university, I was doing my thesis as well as I was working as a creative manager at another digital advertising agency. So वहाँ से I realized कि नहीं. और अब भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, अब तो खैर दे हैव मोर दे आर, मुझे ये लगता है कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ. दे नो हमें तो अब जाके पता चली है ना चीज़ें कि अच्छा हमें हमें ये करना चाहिए था शायद पहले. लेकिन अब के दौर में स्टूडेंट्स आर सो मच अवेयर ऑफ व्हाट दे वांट टू डू. अच्छा, और मैंने नेविगेट जिस तरह किया अपनी करियर में, वो यही था कि जो भी आ रहा है ना, जो भी अप्रोच कर रहा है, no matter what, you just say yes and then figure it out later. Because I think everything when it comes to any matter, it's figure out. You just need to have that spirit. कि अच्छा, I'll figure it out. So you should have the confidence, not the overconfidence, but the confidence to say yes, I'll figure it out. Just trust me and trust me your work and just work. सो उसमें ये हुआ कि एक क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है, जो कि मुझे लगा मेरी बनी अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स. मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, बी इट माय लीडर्स, बी इट माय टीममेट्स, बी इट माय जूनियर्स, दे ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद मी. बिकॉज़ उसके बाद भी जब मैंने उनके साथ अपनी जर्नी खत्म की, दे ऑलवेज वांटेड कि अच्छा नहीं हम दोबारा काम करें आपके साथ. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दिस माइंडसेट कि नंबर 1 ऑब्वियसली you need to have an empathetic heart. You need to have that because empathy कहाँ काम आती है? It's not just कि हम कहें वो कहीं फिलैंथ्रोपी में काम आएगी या किसी सोशल वर्क में काम आएगी. Empathy is also very important when it comes to understanding the client. क्योंकि जब तक आप उसके शूज़ में नहीं जाओगे, आप अगेन बात ये है ना, you cannot sell the Coke case study to every person. Every brand is not the Coke और नाइकी और एडिडास. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्लाइंट है, इसकी क्या नीड है, इसको मैंने क्या देना है. सो दैट्स हाउ ये है. और बाकी जहाँ तक रही चैनल्स की बात, जैसे यू हैव मेंशन्ड कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कोविड अक्सर लोग हैं अभी भी कन्वेंशनल पे फोकस करते हैं, फिर
कोविड के टाइम पे डिजिटल का बूम आया। मुझे ये लगता है कि अब के टाइम में ना मार्केट में एक थोड़ा-सा ना कमी भी है व्हेन देयर पीपल आर लूकिंग फॉर हंटिंग फॉर क्रिएटिव्स बिकॉज़ 2 चीज़ें या तो क्रिएटिव्स हैं वो प्योरली सोशल मीडिया सेंट्रिक हैं, डिजिटल सेंट्रिक हैं या वो हैं जो कि कन्वेंशनल वाले हैं। अभी मार्केट को मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवन व्हेन आई वाज़ आल्सो हायरिंग फॉर माय टीम हम जो चीज़ स्ट्रगल करते थे वो एक ऐसा क्रिएटिव हू इज़ अ गुड मिक्स ऑफ बोथ जो कि दोनों टैकल कर सके बिकॉज़ यू कैन नॉट से नो कि अच्छा कन्वेंशनल तो होना ही नहीं पाकिस्तान में और बिकॉज़ कन्वेंशनल मॉडर्नाइज़ हो गया बट इट इज़ देयर जो आपके प्रिंट पोस्टर्स थे वो डिजिटल स्क्रीन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जो आपकी वन पेजर एक्सट्रीम लेंथी बॉडी कॉपी होती थी, सेल्स कॉपी होती थी, इट ऑफ बीन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। सो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, वहाँ से वो ये नहीं हम कहेंगे कि टोटली इरेडिकेट हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। सो एनीवन हू इज़ कमिंग इन क्रिएटिव उसको एक तो पिछले कन्वेंशनल पैटर्न्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज़ ये वही हाल है कि अगर आज के टाइम में व्हेन वी आर टॉकिंग कि ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया है बिल्कुल। एट द सेम टाइम बीइंग इन पाकिस्तान वी नो कि ये बहुत जल्दी नहीं आने बिकॉज़ इट्स अ होल माइंडसेट। तो उसके लिए आप टोटली इलेक्ट्रिक कार पे स्विच नहीं कर सकते। अभी वो वाला टाइम है कि आपको हाइब्रिड रहना है। आप यू शुड नो हाउ टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक, यू शुड नो हाउ टू वर्क विद द मैनुअल कार और पुराने ज़माने की कार्स पे। सो इट्स द सेम वे इन एडवर्टाइजिंग बिकॉज़ आपके बाकी वो एरियाज़ हैं यू आर सो ऑन पॉइंट कि हमने गाँवों में भी सेल करना है, हमने मेट्रोपॉलिटन्स में भी सेल करना है। सो हर चंक ऑफ ऑडियंस को हमने कैटर करना है और बीइंग अ क्रिएटिव मैं ये भी कहूँगी कि हम वी कैन नॉट बी क्रिएटर्स फॉर जस्ट स्पेसिफिक क्लाउड्स। अगर आपको एडवर्टाइजिंग फील्ड में कदम रखना है ना और अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि ओह नो आई जस्ट हैव टू नो आई जस्ट नीड टू कम्युनिकेट विद दिस नीश और दैट नीश और नहीं अच्छा अब जेन ज़ी का दौर है तो मुझे हर चीज़ बट जेन ज़ी सराउंड कर देंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। इन द एंड ठीक है, देयर आर टीजीज़ जो कि अब ड्राइव कर रही हैं, डिसीजन ड्राइव कर रही हैं, बट इन द एंड स्टिल आप यू देयर हैज़ टू बी समथिंग इन योर कम्युनिकेशन तो आप सबको बता सकते हो व्हाट योर प्रोडक्ट इज़ अबाउट। Oh, totally agree with all the pointers that you have highlighted. Pivoting this point to another reality check of job market. ठीक है? Um, Being a creative is not as balanced life as a BBA student who is doing work in a bank. ठीक है? When you are starting your career in agencies, you don't have that medical की facilities, you don't have that अब तो शायद मैं बहुत देख रहा होता हूँ कि एजेंसीज़ आर नाउ ग्रोइंग एंड दे आल्सो गिविंग कार्स, पेट्रोल, XYZ थिंग्स एंड दिस इज़ गुड. दिस एजेंसीज़ हो या कंपनीज़ हो, यू शुड डू दैट. बट जॉब मार्केट इज़ नॉट एज़ लाइक हॉरिज़ॉन्टली स्मूथ. इट्स लाइक अ बम्पी राइड. स्टार्टिंग ऑफ जब आप स्टार्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है खाली पेट पे क्रिएटिविटी नहीं आती, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को ये सोचते हैं कि आप उसको ₹20,000 देते हैं और आप उससे क्रिएटिव कोई ऐसा क्रिएटिव निकालने की कोशिश करते हैं कि वो अ, 1 डेढ़ करोड़ के क्रिएटिव का काम करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा कम क्रिएटिव होता है. इट्स अबाउट कि वर्किंग विद द एक्सपीरियंस, ठीक है? But in the field, what I'm seeing is agencies nowadays to be very highlighted, so-called agencies as in like जो IT सेक्टर है, उन्होंने क्लाइंट्स पकड़े हुए हैं बाहर से. उनको वो लोग चाहिए जो जिसमें भी पैसा बना सकें वो, ठीक है? ईदर इट्स अबाउट बुक राइटिंग, ईदर इट्स अबाउट ई-बुक, ईदर इट्स अबाउट एनीथिंग, ठीक है? एक तो कोर मार्केटिंग होती है कि ठीक है यार, किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो कन्वेंशनल हो, डिजिटल हो, ठीक है? जॉब मार्केट हमेशा से ऐसी होती है व्हेन यू स्टार्टेड आप स्टार्ट कर रहे होते हैं बहुत बेसिक से, ठीक है? और क्रिएटिव का मैंने ये देखा है कि इट्स नॉट लाइक कि आपको हर साल प्रमोशन भी मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि हर साल आपको जॉब में कोई सैटिस्फैक्शन मिलेगी। हमारी जॉब हो सकता है कि हमारी सैलरी ज़्यादा हो बट जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स एमएनसीज़ में होते हैं या वो सो कॉल्ड 9 टू 5 जॉब में होते हैं, वो नहीं होते। ठीक है? आप ये नहीं सोच सकते कि आप 5 बजे के बाद आओगे एंड यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको 9 बजे के बाद भी काम करना होता है रात के। हाउ यू सी जॉब मार्केट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड नाउ? What's your suggestion to the people who
there are like two type of people if I highlight, ठीक है? There are people who really wanted to earn money and they just wanted to do things, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आईटी में भी पैसे मिल रहे तो आईटी में स्विच कर लो, एजेंसी में मिल रहे एजेंसी में स्विच करो, जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ चलो। एंड देयर आर पीपल हु इन्वेस्ट इन देयर टाइम लाइक यू, लाइक अदर पीपल वी हैव इन द सर्कल, जो 5-5 6-6 साल उस फील्ड में लगाते हैं। मे बी उन 4-5 साल में वो उस लेवल पे एक्सेल नहीं करते, लेकिन आफ्टर 5-6 ईयर्स योर ग्रोथ इज लाइक ग्रोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। फिर आप हो सकता है आप एक-एक क्लाइंट को मैनेज करने के अच्छे खासे पैसे ले रहे हो एंड देन यू आल्सो हैव दैट कनेक्शन बिल्डिंग, तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स का फ्रीलांस के लिए काम कर रहे हो, तो ठीक है यार आपको ये काम चाहिए, आई कैन डू योर सर्विस। व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर दैट? डू यू थिंक कौन-सी ऐसी चीज़ें जिनका लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लोगों को पैसे के पीछे जाना चाहिए? जॉब मार्केट अभी कैसी है? आई हैव सीन जॉब पोस्ट जहाँ पे एक बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर, 3D एनिमेटर, खाना बनाने वाली बाई और पार्किंग के लिए सा टेरेबल मतलब कि आई थिंक वो तो बैफल कर दे उस बंदे को जो कि नया-नया मे बी थ्रू दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स जॉब सर्च करने आया है। बट मैं इसमें एक छोटी-सी चीज़ इसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इसमें उनकी गलती नहीं है। आई डोंट ब्लेम दोज़ कंपनीज़ बिकॉज़ अगर वो पोज़ीशन डाल रही हैं, तो कोई ना कोई तो उनको मिल रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो मार्केट के जो जिसको जिसको फ़र्क नहीं पड़ता एंड दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द इकोनॉमी एज़ वेल, ठीक है? अगर किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो बोलेगा ठीक है यार कोई मसला नहीं है, मैं डिज़ाइनिंग भी कर लूँगा, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगा, पैसे तो मिल रहे हैं। ठीक है? आप ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब आपका इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपको पता होता है मेरी जॉब सिक्योरिटी है और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। कंपनीज़ का मसला नहीं है, ठीक है? अगर कंपनीज़ का मसला है और आहिस्ता-आहिस्ता अगर वो ठीक कर रही हैं, तो अगर कोई कंपनी डाल रही है और मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस में चीज़ देखी है, आई वाज़ लाइक यार आप लोग को बंदे मिलते कहाँ से हैं? वो बोलते हैं भाई मिल जाते हैं। आई हैव सीन पीपल हू आर वर्किंग इन 2025 इन पाकिस्तान ₹50,000 पे, ₹30,000 में लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है? और उनको उनको बस ये होता है कि ठीक है, अगर कभी-कभार कंपनीज़ लोगों का फ़ायदा उठाती हैं और कभी-कभार लोग कंपनीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो असल में उमेर इसमें मैं देखूँ ना 2 साइड्स हैं। एक तो जहाँ की जिन चीज़ों को आपने मेंशन किया ना वो तो टोटली बात ये है कि एक्सप्लॉइट फिर एम्प्लॉयर कहाँ कर रहा है और जो कैंडिडेट है वो बेचारा कहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा है। बट अगर इतने टाइम में मैं देखूँ ना मसले आते अक्सर जगहों पे लिस्टिंग टू द स्टोरीज़ विद माय ओन एक्सपीरियंसेस, सीइंग थिंग्स अराउंड दोनों जगह पे चीज़ें हैं ऐसी जो कि इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा नंबर 1 जो अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूँ जैसे हम पोज़ीशंस अब देख रहे हैं, जो आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे। जो मैंने बात की कि जो कैंडिडेट आ रहा है मेबी अक्सर वो खुद समझे जो कि बेचारा इतना अवेयर नहीं है जिसने मेबी करियर में स्टार्ट ऑफ करना है, उसको शायद लगे कि अच्छा मुझे यही करना है। अच्छा शायद मैं यही करूँगा तो मैं कहीं से शुरू करूँगा। वहाँ से वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन की जर्नी शुरू होती है बिकॉज़ फिर अगर हम ये कहें, ये वो चीज़ है जो कि पीछे यूनिवर्सिटी से फिर स्टार्ट होती है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें जहाँ ट्रेन किया जा रहा है, हमने आगे कहाँ जाना है? क्या ये हमारी जेडी है या क्या ये हमारी जेडी नहीं? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने एक टाइम पे ऐसा काम किया है वेयर I was doing the client servicing, I was doing the creative management, I was pitching, I was even making the invoices and everything. और एट दैट पॉइंट वही एट माय वेरी अर्ली टाइम तो मुझे वहाँ ये पॉइंट फ़ील हु अब जाके अगर मैंने लुक बैक तो आई फ़ील कि नो मैटर द डार्क साइड ऑफ इट बट इट हैज़ मेड मी इंटू समवन। इट हैज़ इट गिव मी दिस थिंग कि नाउ आई नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब कि उससे एक अगर उस टाइम पे ऑल्दो जब कोई भी बंदा मैं हूँ या कोई भी होता, कोई भी एक बंदा जिसने अभी जो स्टार्ट करा है, जो पढ़ रहा है, अगर कोई इन चीज़ों से गुज़रता तो बर्नआउट होना लाज़मी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम उस टाइम पे ऐसी पोज़ीशन में होते हैं जब एक बंदे ने स्टार्ट किया होता है अपना करियर, तो वो बड़ा एक तो सेंसिटिव भी होता है और उसको लगता है अगर कोई विजिलेंट बंदा है, कोई डिलिजेंट बंदा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा है, तो उसको लगेगा कि अच्छा मुझे ये सब करना ही करना है। हाँ, अगर उसके बरअक्स मैं आज देखूँ, अभी ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें पता है अच्छा उसमें एक नेगेटिव चीज़ भी है। मैंने अक्सर ऐसे बट कैंडिडेट्स देखे, ऐसे फ्रेशर्स देखे, जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छा, ये वाली चीज़ नहीं है आई एम अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस कह लें या अ हम इसकी बात कर लें कि अच्छा नहीं आपको एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। आई एम अ ह्यूज एडवोकेट फॉर दिस। बट एट द सेम टाइम आपने एक
इस पॉइंट पे ऐसा भी होना है कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट कि अच्छा आपको कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, लेकिन आप अब अगर एक साइन कर रहे हो आप एक पोजीशन के लिए, आप एक जॉब के लिए, सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अच्छा मुझे कभी ना कभी इस चीज के लिए अपना 150% देना होगा, बट फॉर वंस। बट ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आई शुड नॉट मेक इट माय हैबिट और द हैबिट ऑफ द अदर पर्सन कि वो भी मुझे एक्सप्लॉइट करे। सो यू नो कभी-कभी हमें हमें देना पड़ता है और हमें देना भी चाहिए बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग जो कि हमें स्टैंड अपार्ट करती है फ्रॉम द क्राउड। वरना तो एक ये है ना कि आप रोज़ आओ, आप रोज़ एक काम करो, आप सिस्टम बंद करो, आप चले जाओ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उमेर आप भी आज को ये गपशप सेशन ना कर रहे होते, अभी भी दिस इज़ समथिंग यू मस्ट बी डूइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन ना, आप एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर रहे हो, बट इट इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। सो उस चीज़ के लिए आपको करना है। राइट ऑन द अदर साइड वो लोग हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो इन पोज़ीशंस पे लोगों को कम सैलरीज़ में हायर कर रहे हैं और उनसे काम निकलवा रहे हैं, और उसमें नुकसान ये हो रहा है उस टैलेंट का कि उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आप क्या करेंगे, आज को आप बिठा लेंगे, अच्छा आप वेबसाइट का कंटेंट लिख दो, वेबसाइट का कंटेंट लिख देंगे। आप हमें सोशल मीडिया की कैप्शंस निकाल दो, वो कैप्शंस निकाल देंगे। अच्छा उन्हीं से डिमांड की जाएगी मे बी कि आप हमें कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट दो लिख दो। वो बेचारे वो भी लिखने की कोशिश करेंगे लेकिन वो उसको भी मास्टर नहीं कर पाएँगे। तो एक टाइम पे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, इनिशियल फेजेस में आपको अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको अच्छा लगता है मुझे वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का कोई कोर्स ले लेना चाहिए, मेरी नॉलेज होगी, ले लो। आपको लगता है कि अच्छा मुझे डिज़ाइनिंग का करना है, आप कर लो। आपको लगता है अच्छा मैं कोडिंग में चला जाऊँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, सिंगिंग, आपको जो भी चीज़ लगती है आप करो। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू शुड नो कि अच्छा नहीं, दिस इज़ इट, मैंने मेजर तो ये करना है, अच्छा बाकी चीज़ें उसके साइड में जैसे हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती है ना कि वो आपको फ़ायदा दे रही है, लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी इसमें फँसे रहे कि अच्छा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तब आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ है, व्हिच इज़ आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। पिवटिंग टू अनदर पॉइंट, कनेक्शन बिल्डिंग, ठीक है? ये मुझे ऐसा लगता है क्रिएटिव फ़ील्ड वो वाहिद ऐसी फ़ील्ड है, अगर आपको लोग नहीं जानते, तो आपका एक्सपीरियंस 10 साल का हो, 20 साल का हो, डज़न्ट पॉइंट काउंट, ठीक है? बिकॉज़ इफ पीपल डोंट रिमेंबर यू व्हेन दे रियली नीड स्पेसिफिक वर्क, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? आप कितने भी अच्छे क्रिएटिव हो बनाते हो, आप कितनी भी अच्छी एजेंसी में काम करते हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में काम करते हो, आपका कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं है, अगर लोगों को याद नहीं है आपके बारे में, जब उनको काम करवाना हो, तो आई थिंक दैट्स द मिस ऑफ एन अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? व्हाट आई सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ इन लास्ट 3 इयर्स are coming to the platforms and they are trying to make their own personal brand, ठीक है? पहले ऐसा लगता था कि यार ठीक है हम एक जगह काम कर रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल, और आई सी पीपल हु आर लाइक वर्किंग, वो उनकी पहली जॉब होती है और शायद मरने तक उनकी आखिरी जॉब होती है, ठीक है? पहले के डेमोग्राफिक्स थोड़े अलग थे। पहले लोग वही लोग ये सोचते थे कि चलो ठीक है, पहले शायद पॉलिटिक्स कम होती होगी कंपनीज़ में, पहले लोग ये सोचते होंगे ठीक है कंपनी में ही सही, और मैं इसको सही भी समझता हूँ, और एक कंपनी में भी आपको ग्रोथ मिल रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें आपको किसी और आपको कंपनी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? बट नाउ व्हाट यू आर सीइंग इन द इज़ लाइक हर 3 साल में लोग कंपनी शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये डिमांड हो चुकी है। समटाइम्स यू डन विद द वर्क, समटाइम्स कंपनीज़ नहीं चल पाती, समटाइम्स यू नीड टू सी कि ठीक है यार ये काम कर लिया, नाउ एक्सप्लोर समथिंग एल्स, क्योंकि हू नोज़ कि यार अगर आज आप एड क्रिएटिव्स लिख रहे हो, कल को कोई एआई आ जाए और आपका काम वो कर रहा हो। अगर ठीक है, मैं ये नहीं कहता एआई आने से बंदों की कमी हो जाएगी, लेकिन एट लीस्ट ये तो है ना कि आप जो एक काम 10 घंटे में करते थे, वो आप 5 मिनट में कर लोगे, ठीक है? सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन में भी, अगर एनिमेशन में भी, तो वी डू हैव सपोर्ट ऑफ एआई एंड वी कैन डू थिंग्स फास्टर, एंड जीत उसी की होगी जिसको वो चीज़ आती होगी। बट स्टिल कम्युनिकेशन बिल्डिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसा आपने बोला कि यू शुड हैव द गट्स, यू शुड हैव दैट फ्रीडम ऑफ द स्पीच कि आप लोगों से जाके बात कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपको पैसे कमाने, अगर आपको एक्सेल करना है करियर में, तो यू आप ही को करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी तब जब आप अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करोगे और आप अपनी अवेलेबिलिटी या अपनी प्रेज़ेंस दिखाओगे। हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू यू सी लिंक्डइन एज़ अ प्लेटफॉर्म?
डू यू सी कि लोग आमना को ऐसे जाने कि यार वो उस एजेंसी में काम करती हैं, लोग इस तरीके से जाने कि उस एजेंसी का काम जो कर रही है वो आमना। देयर इज लाइक दो डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट, किस तरीके से लोग देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस कहता हूँ और अपने आप को ब्रांडिंग और अपनी पर्सनालिटी को ग्रोम करना कहता हूँ, तो दूसरी तरफ वी हैव दैट पीपल हु आर यूजिंग प्लेटफॉर्म इन अ डिफरेंट वे, इन अ रॉन्ग वे। लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को यार शादी.com बना दिया जाए। लोग, व्हाट आई सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में अगर मैं लिंक्डइन खोल रहा हूँ, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि यार उसने उसके साथ चीट कर दिया, वो उसका पैसा नहीं दे रहा, उसके स्क्रीनशॉट ये हो गए, ऑल दिस शिटी थिंग, जो लड़कियां देख रही होती हैं। प्रीटी मच श्योर यू हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट, कि यार हाय हेलो के मैसेजेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बात बिल्कुल। होता क्या है, प्रोफेशनलिज्म है क्या। बट अगर मैं पाकिस्तान से बाहर की बात करूँ, लंदन इज़ अ वेरी टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। वो कमी फिर इसलिए भी है कि बहुत सारे लोगों ने तो लिंक्डइन का नाम शायद ग्रेजुएशन के बाद ही सुना है, क्योंकि हमें प्रोफ़ेशनल या हमें पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पे यूनिवर्सिटी में शायद वो इंग्लिश की क्लास में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर प्रेज़ेंटेशन देना हमें आर्ट लगता था, कि वो प्रेज़ेंटेशन दे दी भाई, बहुत कोई 30 मार्कान का काम कर लिया आपने, उन 30 लोगों के सामने जिनको आप जानते हैं, ठीक है? बट व्हेन यू आर इन द रियल वर्ल्ड ना, तो आपको पता चलता है कि यार अब मुझे ये चीज़ बेचनी है। हुँ। सामने वाले लोगों को नहीं पता ये क्या है। हो सकता है कभी-कभार मुझे भी ना पता हो कि ये चलेगी नहीं चलेगी, बट मुझे ये बिलीव के साथ लोगों को सेल करनी है कि वो चीज़ बिके। क्योंकि व्हाट आई सी कि इन अगर हम देख रहे हैं तो लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं कमर्शियल्स पे, ठीक है? उनके शूट्स पे, उनकी कम्युनिकेशन पे। अगर वो मैं नाइकी, एडिडास इनकी बात नहीं भी करूँ, पाकिस्तान में भी अगर देखें, वी हैव सीन जैज़ कैश। जैज़ कैश 10 साल पहले और 10 साल बाद जैज़ कैश 360 शिफ्ट। नाउ एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर जैज़ कैश। जैज़ कैश दिख रहा है, ईज़ी पैसा, डूइंग अ वेरी गुड ब्रांडिंग, ठीक है? 360 शिफ्ट लिया उन्होंने, ठीक है? वी हैव सीन इम्तियाज़ एज़ अ ब्रांड, ठीक है? किसी ने नहीं सोचा था कि कन्वेंशनल स्टोर, ठीक है, एक जो करियाने की दुकान थी वो इतना बड़ा कन्वेंशनल स्टोर बन जाएगा। दे आल्सो ब्रांडिंग देयरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है? बट एट द सेम टाइम बात वही है कि आप सेठिया कंपनी में काम करो या किसी एमएनसी में काम करो, आपकी पर्सनैलिटी तो ग्रो करनी चाहिए। तो व्हाट्स योर से ऑन कनेक्शन बिल्डिंग, कम्युनिकेशन? इज़ इट समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन द ओवरऑल करियर पाथवे? अच्छा, उमर इस पे मेरा वही वाली अप्रोच है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अक्सर आपने वो भी लोग देखे हैं और वो है भी इट्स अगेन पॉजिटिव थिंग अगर आप करो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बंदा वो करे। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, ठीक है आई नीड टू बी वोकल अबाउट इट, आई शुड बी ओनिंग इट बट आई शुड नॉट बी फोर्सिंग इट ऑन अदर पीपल। जैसे 9 टू 5 वाली चीज़ जब आई 9 टू 5 से निकलने वाली चीज़ पे जब लोग बात करते हैं, तो वो दूसरे लोगों को ये फ़ील करा रहे होते हैं कि मे बी दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बट मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल कंटेंट हो इन देयर ओन लाइफ, जो वो 9 टू 5 का सर्कल फ़ॉलो कर रहे हैं। सो दोनों साइड्स हैं। अच्छा सेम गोज़ फॉर उसमें मुझे ये भी फ़ील आती है जो कि मैंने इतने टाइम पैटर्न्स देखे हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी जैसे आपने कहा सेठ कल्चर है, आप किसी कंपनी में बैठे हो, वो कंपनी ना माइंड कर जाए कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो या आप डरे हुए हो। देखिए इसमें ना एक आपकी जो एक अपनी ज़ात है ना उसका बड़ा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने शेल से निकलना ही नहीं चाहता। वो नहीं निकलेगा। नो मैटर व्हाट हाउ मच आई पुश यू कि अच्छा नहीं हूँ मैं, कनेक्ट करो, नेटवर्क करो, ये करो, वो करो। मे बी आपकी ज़िंदगी का पैटर्न चल रहा है, द वे यू आर डूइंग इट एंड यू आर फाइन विद इट। अच्छा मे बी आपका एक स्पेसिफिक है कि अच्छा गोल इन अर्निंग वो मेरा आ रहा है, इन कनेक्शंस वो यू आर फाइन विद दैट। तो नो मैटर मैं आपको जितना पुश करूँ यू वोंट डू दैट। हाँ, एक तरफ बीच में वो लोग फॉल करते हैं who are fine to adapt to these things जो कि टेक अप करना चाहेंगे इन चीज़ों को एंड देन देयर आर दोज़ पीपल हु आर वेरी लाउड वेरी ब्रांड। तो जहाँ बात आती है ना कि अच्छा कंपनीज़ नहीं एक्सेप्ट करती, मगर वहाँ मेरे ख़्याल से और जो अब मज़ीद फ्रेशर्स भी आ रहे हैं अ, उनको भी ये चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आनी चाहिए। अ, मतलब उसका ये मतलब नहीं कि आप अगलों को डिमीन कर दो या आप कह दो कि अच्छा नहीं, आपकी कंपनी तो मेरे से चल रही है या मुझे आपके नाम की नहीं ज़रूरत या अच्छा मतलब कि इट्स द बोथ इट गोज़ बोथ वेज़ ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ कि मैं आई एम वोकल, आई नो हू आई एम,
people around me, they know I like to network. And इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जो आपके इर्द-गिर्द भी लोग हो वो इनसिक्योर ना हो। एक तो आप इनसिक्योर ना हो इस चीज़ को लेकर भी कि अच्छा मेरे साथ कंपनी का नाम अटैच्ड है तो मेरी कोई स्टैंडिंग है। आपका अपने पे, अपनी क्राफ्ट पे, चाहे वो छोटी है, वो बड़ी है, वो जिस लेवल की भी है, यू नीड टू हैव दैट फेथ। और वो फेथ विल टर्न, ठीक है, देयर आर टाइम उमैर, नो मैटर व्हाट, वो कोई आप किसी भी पोज़ीशन पे बैठे हो, आप कितने भी सक्सेसफुल हो, हर बंदे के दिमाग में ये सोच एक पॉइंट पे आती है कि भई मैं तो कुछ नहीं। आ, हम दुनिया के आगे बहुत कुछ बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बट ये टाइम एक है हर इंसान का जो इस फेज़ से गुज़रता है कि अच्छा एक पॉइंट पे उसको लगता है कि मैं कुछ भी। सो आपको बट आपको दुनिया के आगे अगर यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आप नहीं रह सकते वोकल हुए बगैर, यू नीड टू कनेक्ट, तो यू हैव टू गिव दिस इम्प्रेशन, बल्कि आपको अगले को ये बात बता देनी है कि भाई आई एम अ फ्री स्पिरिट, आई एम अ फ्री सोल, मैंने ये करना करना है। आपको इससे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन द एंड उमर, अगर हम देखें, इट्स ऑल अबाउट, हम किसी का रिस्क तो नहीं छीन सकते ना। फिर वहाँ वो सेट्स छीन सकता है, ना हम उसी कंपनी का बिज़नेस कहीं लेकर जाके छीन सकते हैं। आपकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स बहुत मैटर करते हैं। देखिए, अगर आप गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, वो वन डे और द अदर दैट इज़ गोइंग टू फ्लॉप। तो वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर हो। फिर अगर मैं चाहे किसी एजेंसी के अपने क्लाइंट तोड़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर मैं कहीं एजेंसी के क्लाइंट तोड़ूँ या मैं किसी ब्रांड में गई हूँ, मैंने वहाँ जाके अच्छा अपनी साइट पे टीम बना ली कि हम उसको नुकसान पहुँचाएँगे, तो चलो लेट्स मेक अ टीम एंड डू दिस और दैट। मेरे ख्याल से वहाँ इंटेंशन का आपका बहुत रोल प्ले करता है। इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, फिर आपको कोई वो होने से भी नहीं रोकेगा। यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड इट्स नॉट फॉर द बैड ऑफ एनीवन, कुछ बुरा नहीं होगा। सो जहाँ तक आई बात ये कि लोग डरते हैं, देखिए वो मुझे ये लगता है देयर आर मेनी पीपल जिनको मैंने ऑन द वे मैंने देखा, जहाँ मुझे लगा अच्छा ये एक्सप्लॉइट हो रहा है, या इसको यहाँ वोकल होना चाहिए, या अच्छा इसको यहाँ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने देखा, मैंने उनको जितना भी समझाया ना कि बट दे जस्ट डिडन्ट लिसन। सो फ्रॉम देयर आई रियलाइज़ कि कुछ लोग हैं, आप उनको नहीं सिखा सकते हो, आप उन्हें नहीं समझा सकते हो। सो इन द एंड इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को क्या समझा रहे हो। सो या दिस इज़ समथिंग आई फील अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। भी यही चीज़ है कि आपको, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर एजेंसी, डू इट। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर वर्कप्लेस, डू इट। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर ऑफिस, डू इट। बट एट द सेम टाइम, people should know about you as well. So it's, there is no bad in talking about your workplace, but you should also be telling about you. Totally agree. Totally agree with all the points that you have shared. I think we have covered a lot of things regarding to this creative and regarding to this overall industry, because this industry is it's a bit different and it's a bit mess. ठीक है, it's not that easy to क्योंकि कभी कभार what I personally believe कि अगर आप हर किसी के साथ अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है, it's not about what is right or wrong, it's about what's right for you. Maybe uh, आप किसी कंपनी में जाते हैं 4 साल पहले, जब आप उसमें जाते हैं तो आपको वो कंपनी अच्छी लगती है, और जब आप उन लोगों को समझ सकते हैं फिर आपको पता चलता है नहीं यार एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है एंड आई वांटेड टू ग्रो। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये इसी तरीके से आप ग्रोथ करते हो, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव होता है तभी आप ग्रो करते हो, वरना आई हैव सीन पीपल जो 10-10 15-15 साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं और उनको नहीं चाहिए ग्रोथ, और उनके लिए कोई गलत बात नहीं है, मतलब कि आपको गिल्टी भी नहीं फ़ील होना चाहिए। मतलब आप अगर कहीं काम कर रहे हो, आपने वहाँ 8 साल, 10 साल लगाए हैं, बहुत सारे लोग तो शायद मे बी आउट ऑफ गिल्टी ही नहीं निकल पाते ना कि अच्छा हम अब कैसे मना करें। गिल्टी कह लें, आउट ऑफ गिल्टी कह लें या आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन कह लें, क्योंकि हमारे यहाँ हम बहुत सुस्त कौम है, ठीक है? हमें ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सीन पीपल रीचिंग आउट टू मी, कमिंग टू मी कि हमें जॉब चाहिए, और जब आप उनको वो जॉब सजेस्ट करते हो, कहते हो नहीं यार ये बहुत मुश्किल है यार, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो ऐसी हो जाए, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को कभी भी व्हाइट कॉलर जॉब समझा ही नहीं गया, ठीक है? आप फैशन डिज़ाइनर हो, बहुत बड़ी बात है। आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप बहुत बड़ी बात है। आप आर्किटेक्ट हो, बहुत बड़ी बात है। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो वो तो हर कोई कर लेता है, ठीक है? आप बैठे हो, आप अगर आप किसी को कह दो कि यार आप फ्रीलांस करते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है फ्रीलांस का मतलब है कि यार कुछ नहीं करता। आई हैव सीन पीपल हू आर डूइंग वेरी वेल इन द फ्रीलांस आई पर्सनल ब्रांडिंग प्लेड अ लॉट ऑफ रोल ना उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को एज़ अ फ्रीलांस एस्टैब्लिश किया।
ग्राफिक मुझे ऐसा डिजाइनिंग। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स अबाउट आप जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करोगे, ठीक है? बेशक फिर अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग लोगों को ऐसा लगता है अच्छा पोस्टर बना दो, अच्छा कवर बना लो, अच्छी पोस्टर कर दो, दिस इज़ नॉट पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ लाइक लोगों को पता होना चाहिए कि यार ही इज़ द रिसोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम। उनको पता होना चाहिए। In that it's not always about the skill even मैं when even I hire people या मैंने तो ये चीज़ देखी है इट्स मोर अबाउट दे शुड हैव द गो गेटर स्पिरिट क्योंकि पहले आपके अंदर ये गो गेटर स्पिरिट होगी तो फिर तो यू विल फिगर आउट एनीथिंग वरना वही बात है कॉम्प्लेसेंसी अगर आ गई कि अच्छा मैंने बस यही करना है या नहीं बस अब हो नहीं पाएगा तो वो वाली चीज़ और वही जो कंफर्ट ज़ोन में अगर आप फँस गए तो हमारी जो फ़ील्ड तो ख़ैर जो भी करें लेकिन सिंस वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइज़िंग तो देयर इज़ नो सच थिंग कि अगर फॉर ग्रोथ कि अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में स्टक हो गए ना तब ग्रोथ नहीं है व्हिच इज़ ट्रू। जो कि एक ब्रूटल ट्रुथ है कि हमारी फ़ील्ड में देखिए और फ़ील्ड्स होती है ना, मेबी आप डाटा एंट्री की जॉब पे हो या किसी और आप पोज़ीशन के ऊपर हो, वहाँ वहाँ ये वाली क्राइटेरियाज़ नहीं होते। वहाँ ठीक है, हो सकता है आपका हर 2 साल बाद या 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट लग जाए, एक चीज़ हो जाए, दूसरी चीज़ हो जाए। यू कैन बी डूइंग द सेम थिंग एवरी डे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको विद योर एक्सपीरियंस आपको वहाँ आपका आपका लेवल अप हो जाए। बट हमारी फील्ड में सिंस इतनी चीज़ें आ रही हैं और एआई आ गया, टूल्स चेंज हो गए, माइंडसेट्स चेंज हो गए, उसके साथ आपको इवॉल्व करने के लिए और पेस मैच करने के लिए फिर कंफर्ट ज़ोन वाली चीज़ है। फिर तो आपको निकलना ही निकलना पड़ता है नो मैटर व्हाट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड पॉइंटर्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर पीपल विल get much knowledge from this session. So thank you so much, Amna. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session discussing the harsh reality and the real factor of this creative or this industry. Thank you so much for your time.